But the main barrier that comes your way is the SSB. So I have my brother here who has also been to SSB, and he must know, and everyone must know actually that what SSB is, because it's not just about the job you're getting. It's about the time and the, what to say, it's a whole lot of experience that you will get in SSB. So if you get a chance, once you should at least go for it. I know you would love it. This is what I'm giving a special message to my juniors. There were times when my girls, the batch of mine, didn't want to play table tennis. So I had this interest in table tennis, and I remember sir, our PT sir, he acknowledged me, and he, encouraged me to go for it. But then it is the same problem here. The girls don't want to go out for playing, some of them from my batch, my friends whom I call. So here I come across my junior, Tazleen, who is sitting over here. She would accompany me. So this is the thing, that one or the other, you will always get a support from the JNV family. If I go across even one point, even one moment of my life, there is nothing where I can't associate with my, JNV family. If I go through for my sports, then too you will get their assistance or their help. If I go to my, personality development, there too you will get my JNV family. If I go to my communication skills, or you go to my confidence, or you go to my academics, or go in every field of mine, you'll always find my JNV family along with me. This is indeed a blessing that I will always be grateful to. Wherever I go, I told when I went to school, JNV, I also told that in interviews, in my personal interview, I was asked, you talk so much about JNV, you have praised so much about JNV, just tell me one thing that is not good in JNV. At least there must be something or the other which is not good about JNV. So he was very keen. I was telling him that no sir, there's nothing, no sir, there's nothing. So he was, after every 2-3 questions, he is repeatedly asking me, tell me something bad about JNV. There must be something. So I told him that, sir, the series of events and the series of appreciations that I'm giving about my institution is still lacking in. If I go on talking also, the list will still not end. But if you ask me, one such failure of my institution, I am unable to say so, sir. He was so, he was in a deep thought. He sat for a while and he said, I must visit your school someday. This is what he said. And it's indeed a pleasure and indeed an honor that he shared this with his colleagues, who are obviously officers and they don't have time to, spare time for talking useless. So he shared this with his colleagues, who in turn in my conference talked about it. The conference is very short for a short moment of time. After that, the ma'am, she discussed about, you are that Navodaya girl, right? So, in that very crowd, the crowd where all the screens people or all the screen candidates are sitting, and we are waiting for our recommendation result, they are being called out as recommended candidate. And in addition to this, calling out as being called out as a Navodaya, that is what my pride lies. That is what I achieve. I always try to not just keep my parents or myself or my teachers or my institution, but each and everyone who is associated with me, in one way or the other, connected to my, every step or every appreciation that I get, and being recognized in this way as a Navodaya is my pride. I am ever thankful to each one of you sitting here that you could spare your valuable time and come here, gather here as a family, and I'm blessed to have got this few moments
to share my words. And in another way, be grateful of this moment. This will be carved inside my heart for my life. Thank you so much. Hello everyone. A very good afternoon to all of the delegates, our respected principal sir, our respected teachers from JNV Pelapur, respected seniors, my beloved friends and my juniors. Thank you very much for this recognition. Myself, Bonrai Rongmai, from 9th batch of JNV Pelapur. I still remember the day when I entered the school campus. It was 8th of July 2002. And that night was like a nightmare for me. I cried the whole night, remembering my parents, my home, and everything. So the day when I joined school, my elder brother was there in class 10. So he consoled me, like, you have come here for something. You have to achieve something, you have to study hard. Today, I feel myself very much privileged that I am standing out here and recognized by all the fraternity of Navodaya. So, sharing about my journey, when I passed out in 2009, everybody of us has dreamed of becoming doctor or engineer. So does I. I also have dreamed of becoming a doctor. But I failed twice. Then my brother, he is a doctor. Right now he is pursuing MCH from Madras Medical College. He told me कि बहुत हो गया, you just go do B Farm. When I joined B Farm, मुझे पता नहीं था कि मतलब B Farm, what is it? Joined here, then I came to know that there is one privileged post as drugs inspector, which is almost equivalent to a doctor. So I have tried my best to achieve it. And remember one thing, hard work has no alternatives actually. Hard work, I tried my best to study. I used to study whole night, whole day. Then for this job, I required an experience of at least minimum 18 months in manufacturing of medicine in Schedule C drugs actually. It said injectable drugs. And I went to this Himachal Pradesh in Alkem Baddi. There I got trained for the production job. Then I joined Sipla Sikkim and I have worked out there for next 2 years. This is my 5th job consecutively and this is my 2nd government job under Assam government. So thereafter I was very keen for this advertisement when it will come out for this inspector of drugs. And suddenly in 2018 it was advertised for 12 persons. All over the Assam for 12 persons. The advertisement was out under APSC, Assam Public Service Commission. Then I have applied. Then again it was got cancelled for some technical or whatever it was problem associated with the APSC. Again it was advertised in 2018. There I applied under MHRB, Medical Health and Recruitment Board. Then I got selected in written examination, then again screening for personal interview. Thereafter I have joined as an inspector of drugs, Silchar and additional charge of whole Barak Valley. So currently I am serving as a inspector of drugs for whole Barak Valley, 4 districts. And regarding the hard work and some inspiring words, I would like to suggest my juniors. भाई जहाँ से आए हो, जहाँ से निकले हो, it is more than
you have the potential as we have, and we can do anything if you are determined to do. So I am very much thankful. Whatever I am today is just because of my parents and the schools. Navodaya has imbibed so many qualities, and I have always tried to be an all-rounder. So biology sir was there as a teacher of biology, and PT sir was there. I have played Kho-Kho in national level schools, and many more games I used to play, even TT, badminton, everything. I have always tried to be all-rounder. So that time my mom used to call me up and tell me to just focus on studies. Leave all this, just focus on studies. Just imagine a pen as your weapon. So I used to tell my mom like, सब कुछ करूँगा, खेलूँगा भी, सब कुछ करूँगा. And I used to go on parade also. There every year on 26th January and 15th August, we used to go to this Lakhipur, right? As a troop member, I used to go there. We used to achieve this first prize as a troop of Jainvi Pailapur also. And it was my journey in the school. And thank you very much. Thanks a lot actually. This is my first interaction since I left school in 2009. This is my first interaction with. आना बाना बदलेगा तू खुद को बदल तभी तो जमाना बदलेगा। भारत के पुरातन शास्त्र ऋग्वेद के महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात ज्ञान ही ब्रह्म है को आधार मानकर 1986 की नई शिक्षा नीति की अनुशंसा पर भारत सरकार ने ज्ञान की ज्योत जलाने व ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को शिक्षित व प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की थी, जो आज विस्तार करते हुए 27 राज्यों व 7 संघ शासित प्रदेशों में शिक्षा का अलग जगह रहे हैं। समूचे भारत में स्वीकृत 661 आवासीय व सह शिक्षा के नवोदय विद्यालयों में से एक जवाहर नवोदय विद्यालय पेलापुर कछार की स्थापना 1994 में की गई तथा वर्तमान परिसर की नींव 19 सितंबर 1997 को माननीय मोहीराम सेकिया जी तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा द्वारा रखी गई, जो 28 एकड़ में से मात्र 9 एकड़ जमीन पर ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध है। सत्र 2020 में विद्यालय का बोर्ड व नॉन बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम 100% रहा तथा कक्षा 10 में 96% के साथ इरफान लश्कर तथा कक्षा 12 साइंस वर्ग में कुमारी ताहिमा व मानवेंद्र पॉल 92.2% तथा मानविकी संकाय में 92.8% के साथ रीमा दास टॉपर रहे। वर्तमान सत्र में इस विद्यालय के 5 छात्र छात्राएं IIT, NIT तथा 2 विद्यार्थियों का चयन नीट हेतु हुआ। इसके अतिरिक्त यहाँ के 4 विद्यार्थी राष्ट्रीय व 8 विद्यार्थी राज्य स्तर विद्यार्थी विज्ञान मंथन प्रतियोगिता में तथा 4 विद्यार्थियों को इंस्पायर मानक अवार्ड से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार द्वारा नवाजा गया। यहाँ के वर्तमान विद्यार्थी ही नहीं वरन श्रीमान विक्रम केरी डिप्टी कमिश्नर माजुली जिला, श्री राजीव सिंह वैज्ञानिक मंगल मिशन इसरो, डॉक्टर अर्पिता राय चौधरी वैज्ञानिक जर्मनी आदि भूतपूर्व छात्र छात्राएं न केवल विद्यालय, जिले व राज्य वरन भारत देश को प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना अनुसार आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। मार्च 2020 से देश में आई विश्वव्यापी आपदा के समय विद्यालय ने फतेहपुर उत्तर प्रदेश से 1 वर्ष के लिए माइग्रेशन पर आए बच्चों तथा विभिन्न
राज्यों के शिक्षकों को जिला प्रशासन व नवोदय विद्यालय समिति के पदाधिकारियों के सहयोग से अपने अपने पैतृक आवासों तक सफलतापूर्वक पहुंचाया तथा जिला प्रशासन के नेतृत्व में मई 2020 से सितंबर 2020 तक क्वारंटाइन सेंटर तथा कोविड केयर सेंटर सफलतापूर्वक संचालित किया। देशव्यापी बंद के दौरान विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की मैपिंग की गई तथा जिन विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन क्लास हेतु गैजेट नहीं थे उन्हें घर पर जाकर स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करवाया गया, जिससे उनके शैक्षिक उत्थान व उत्तम स्वास्थ्य हेतु विद्यालय द्वारा निरंतर प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आपदा को अवसरों में बदलने की मुहिम में कोविड केयर सेंटर संचालन के बंद होने पर परिसर को सैनिटाइज करने के बाद परिसर की सघन सफाई अभियान सफलतापूर्वक संपादित करते हुए विभिन्न विभागों का मेंटेनेंस व रिपेयर का कार्य युद्ध स्तर पर पूरा करवाया गया। वहीं दूसरी ओर नई शिक्षा नीति के आलोक व बदलते दौर की शैक्षिक विधाओं में शिक्षक वर्ग को निरंतर प्रशिक्षित किया, जिससे विद्यार्थियों को शैक्षिक लाभ निरंतर मिलता रहे। इसी अवसर पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम परियोजना के तहत टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड व नवोदय विद्यालय समिति के सहयोग से विद्यालय में 12 कक्षाओं को डिजिटल तथा लाइब्रेरी को वर्चुअल क्लासरूम में बदलकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सबल व समृद्ध किया गया। सत्र पर्यंत विद्यालय द्वारा पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों का संचालन यहाँ के शिक्षक वर्ग द्वारा सफलतापूर्वक करवाया जाता है, जैसे प्रकृति से प्रेम हेतु वृक्षारोपण, श्रम के महत्व व स्वच्छता की उपयोगिता सिखाने हेतु साप्ताहिक अभियान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हेतु करके सीखने के सिद्धांत पर प्रायोगिक कार्य, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं, निकट के परिसर व गांव में जागरूकता अभियान, विभिन्न जयंतियां, सभी धर्मों के त्योहार व पर्व, कैरियर काउंसलिंग, बच्चों को राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत करने हेतु इसी तथा सेवा की भावना सिखाने हेतु स्काउट व गाइड गतिविधियां, योग की सामूहिक प्रस्तुतियां, ऑनलाइन पीयर ग्रुप स्टडी, शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन नैतिक शिक्षा पर वक्तव्य आदि गतिविधियां नई पीढ़ी को प्रेरित करते हुए आह्वान करती है। हम नव युग की नई भारती नई आरती, हम स्वराज की ऋचा नवल भारत की नवलय हो, नव सूर्योदय नव चंद्रोदय हमी नवोदय हो, हमी नवोदय हो, हमी नवोदय हो। 25 अगस्त 1994 और आज हमारे पास है 28 अगस्त 2021। पहला जो लेटर इस नवोदय को ओपनिंग का जो लेटर मिला 25 अगस्त 1994, तो आज हमारी जर्नी 27 साल की हो गई। हमारा स्कूल अब शिशु नहीं रहा, बच्चा नहीं रहा, अब एक जवान हो चुका है। और ऐसा हमारा बच्चा जवान हो गया जिसने अपना बचपन पेलापुल गांव में, जब ऐसी छतें नहीं थी, बच्चे इधर बॉयज नीचे सोया करते थे। ये जो साहिबान जिनको जो शायद पहली बार नवोदय के बारे में सुन पा रहे होंगे, मैं उनसे रूबरू हूं इस बात को लेके। एक तरफ बच्चे लड़के, एक तरफ लड़कियां, बीच में टीचर सोया करते थे। हमारे पास टेम्परेरी साइट नहीं हुआ करती थी। वो उस जगह पर भी
हमारे बच्चे उस साइड पहले बैच में 40 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। उस 40 बच्चों में से भी पेरेंट्स ने स्कूल की स्थिति को देखते हुए कुछ बच्चों को विड्रॉ कर लिया और उन 40 में से 21 बच्चे पढ़ते हुए 10th तक आए। आज उन 21 बच्चों के द्वारा लगा गया पौधा आप देखिए कैसे गुल खिला रहा है। आज वो 21 बच्चों का जो एक समूह था एक लश्कर बन गया और लश्कर बनकर कछार का इकबाल बुलंद कर रहा है। क्योंकि किसी हिंदी कवि ने भी कहा है कि जब बच्चे इंसान के रूप में ये धारण कर ले, खम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर गिर जाते पांव उखड़, और मानव जब जोर लगाता है पर्वत पानी हो जाता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, किसी प्रकार की कोई इसके अंदर कोई दूसरा थॉट नहीं है। मारिया की आप जर्नी अभी आपने सुनी, रॉन्ग वे की आपने जर्नी सुनी, तो मेरा जो नई जनरेशन जो यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं उनसे ये आग्रह है, किसी प्रकार की कमी आप में नहीं है, सिर्फ आप एक डिटरमाइन कीजिए, जैसे आपके सीनियर्स ने डिटरमाइन किया, अपना लक्ष्य निर्धारित किया और उस लक्ष्य के ऊपर काम कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको एक ऐसा अच्छा खूबसूरत प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वहां आपको 24/7 टीचर्स की हेल्प मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर शायद देश के अंदर सबसे बेहतरीन इंस्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर्स है तो जेएनवी के अंदर है पूरे इंडिया में। आप एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, मैं यहाँ आपको एक दो दृष्टांत बताता हूँ। 26 जनवरी 2021 रात के 2 बजे फोन आता है मेरे पास कि सर एक डेड बॉडी वाराणसी नेशनल हाईवे पर पड़ी हुई है और उसमें फोन पे आपका नंबर है सबसे ऊपर मेरे पास। मेरी नंबर बताइए आप। बताया जाता है एक मेरे हाउस का बच्चा, मैं मैथमेटिक्स टीचर रहा 27 इयर्स तक, हाउस का बच्चा रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। तत्काल ये मैसेज रात के 2 बजे मैंने वाराणसी एलुमनी ग्रुप में छोड़ता हूं। किस्मत देखिए, वाराणसी डीएम, यहां हम जिसको डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं, नवोदयन, जेएनवी कैथल हरियाणा के स्टूडेंट, मैसेज मिलता है, इंफॉर्मेशन होती है। विदिन 4 आवर्स उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाके पोस्टमार्टम वगैरह करा के उसके पेरेंट्स को राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है टोंक के पास, जयपुर के पास टोंक, वहां इत्तला की जाती है। एलुमनी, उसके पेरेंट्स को कुछ याद नहीं है, वाराणसी के एलुमनी उस बच्चे की डेड बॉडी को लेकर राजस्थान चले जाते हैं। ये वो कहानी। लॉकडाउन का पीरियड, एक बच्चा फोन करता है कि सर मैं जोरहाट में फंस गया हूं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है खाने के लिए। उस दिन किस्मत से इकबाल, बाजलून, अफसर और शायद एक दो और मिथुन या कोई ऐसे मेरे साथ बैठे हुए थे, ये एलुमनीज। हम लोग भूख लग रही थी, देर हो गई थी, रात के 9 बज गए थे, यहीं पे हम कुछ खाना खा रहे थे। मैंने इकबाल से बोला कि यार जोरहाट में कौन हो सकता है, कि सर एलुमनी है। बात नहीं हो पाई। मैंने जोरहाट एलुमनी प्रिंसिपल को, सॉरी जेएनवी प्रिंसिपल को फोन किया, तो उनके स्टाफ का एक मेंबर वहां क्या बोलते हैं, स्टेशन मास्टर, उन्होंने उस बच्चे को हेल्प किया, रात में स्टे कराया। तो एक ऐसे ग्रुप के साथ हम जुड़े हुए हैं। तीसरा दृष्टांत, जब इन बच्चों को शिफ्ट कर रहे थे हम लोग लॉकडाउन में, तो एक बच्चे को हार्ट अटैक होता है बॉम्बे में। बॉम्बे एलुमनी को जब मालूम चलता है तो बच्चे को वहीं पर ड्रॉप किया जाता है, पूरे कंटिंजेंट को ड्रॉप किया जाता है, टीचर्स को ड्रॉप किया जाता है, बच्चा का ऑपरेशन करते हैं और उस बच्चे की लाइफ सेव होती है। हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जब हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो निसंदेह शायद हमें अपने आप को अधूरा नहीं समझना है, ऐसा नहीं समझना है कि हमारा कोई ऊपर नहीं है। आज सिक्किम की एक बेटी एडमिशन लेने जब अमेरिका जाती है तो वहां नवोदय बच्चे उसको हाथों में लेते हैं,
और उसका पूरा जो प्रोसेस एडमिशन का वो कंप्लीट करा दिया जाता है। वही कुछ पार्ट ये हमारी JNV पेलापुल जो एसोसिएशन है, ये भी किसी प्रकार से कभी भी सिलचर की पब्लिक JNV की तरफ आशा की निगाह उठाएगी, हम उस जगह आपके साथ पूरी तमाम जो हमारे टीचर साहिबान हैं उनके साथ तैयार मिलेंगे और कुछ जानकारी देंगे। मैं सिंपल एक JNV पेलापुल की ही बात करूं। JNV पेलापुल एक ऐसा, क्योंकि कहीं इंटरव्यू में शायद जो पत्रकार महोदय हैं, मीडिया बंधु हैं, उनकी कहीं शायद मारिया की इंटरव्यू थी, वो उनसे मुखातिब हो रहे थे ऑनलाइन, तो उन्होंने बोला क्या बराक वैली में IAS प्रोड्यूसर या अच्छे जो ऑफिसर्स प्रोड्यूसर करने की जो फैक्ट्री है क्या JNV पेलापुल ही है? तो मारिया ने शायद ये बोला था, हाँ सर, शायद वो धर्मेंद्र जी थे, जहां तक मुझे याद है, आपसे इंटरव्यू कर रहे थे, मुझे याद नहीं कौन सा वो था। सो निसंदेह पब्लिक हमसे एक्सपेक्ट कर सकती है। तो ये तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, बंद नहीं है। अभी हमने एक स्कूल लेवल पर कंपटीशन कराया। कंपटीशन 2 लैंग्वेज में था, रीजनल लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। रीजनल पे इनका चयन हुआ, नेशनल पे चयन हुआ क्या कि थोड़ा वो गाना फिल्मी चला गया। वहाँ से रिकमेंडेशन आई हमारे डिपार्टमेंट से, नेशनल कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो बच्चे यहाँ पुराने जानेंगे, आपके एक प्रिंसिपल साहब रहे हैं यहाँ पे, शोभन बाबू जी, है कोई उनके टाइम का बच्चा यहाँ? या शोभन बाबू सर आज हेडक्वार्टर नवोदय विद्यालय, जब कछार की कोई बात आती है तो वहाँ सबसे पहले सर टेक ओवर कर लेते हैं। चाहे मुझे कोई फंड की जरूरत होती है, सर को रिंग किया जाता है, सर इतना पैसा चाहिए। आज स्कूल का जो सिनेरियो चेंज हो रहा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ के पुराने प्रिंसिपल। So the singer of that song is Vijay Devgan, and the lyrics was written by Chamandeep Deol, and the music was given by Daljit Farid Koti, and the concept of the song was given by Amandeep Singh Dilon and Tarseem Singh. सभी को रिक्वेस्ट करना साथ में गाइए आप लोग भी। तेरी जय नवोदय हे, तेरी जय नवोदय हे, कुर्बान तुझ पे जगत की हर्ष नवोदय हे, तेरी जय नवोदय हे, तेरी जय नवोदय हे।
तेरी जय